क्या है यार? Started. Good Dr. afternoon Parmesh ji, to शुरू करो। जी madam. Good afternoon to all of you. I am Dr. Pramesh Chandra, Assistant Regional Director, IGNOU Regional Center Kanna. I, on behalf of IGNOU Regional Center Kanna, welcome all of you in this webinar. All the respected regional directors, assistant regional directors, deputy directors who have joined from different regional centers in this webinar, the coordinators of different study centers under the jurisdiction of Regional Center Khanna, plus our Honorable Regional Director, Madam, Senior Regional Director, Madam Dr. Santosh Kumari ji, and all IGNOU staff member of Regional Center Khanna. I welcome everybody in this webinar on the auspicious occasion of National Energy Conservation Day. To start with, I would just like to make some initial comments about this program. The Ministry of Education's Innovation Cell has directed the institution's Innovation Council to celebrate the National Energy Conservation Day, which actually falls on 14th of December 2023. This year, the National Energy Conservation Day is celebrated to spread the message on the importance of conserving energy and to showcase the achievements of the nation in energy efficiency and conservation. The IGNOU IIC is directed by the Ministry MIC to celebrate this day. In this connection, IGNOU Regional Center Khanna is organizing a national webinar on the topic energy conservation in day-to-day life. And for this, we have invited as keynote speaker Dr. Amit Kansalji. I heartily welcome him in this webinar. And all of us are aware that energy is the essence of all life forms. We can't move if we don't have energy in our body, which is generated by the food we take regularly. Plants can't grow naturally and wither if they don't make food in the presence of light energy received from the sun. Similarly, non-living things also move or stop depending upon the amount of external energy provided to them. For example, a steam engine moves only when coal is burnt and its chemical energy changes into heat energy. I myself, being a student of physics, have learned that as per the conservation of energy, the energy can neither be created nor can it be destroyed, and that it remains conserved in all. ये परमेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी। I hope my voice is coming now, ma'am. यस, अभी आ रही है। Okay. So I was telling that I am also a student of physics, and being a student of physics, I can very well understand the basic philosophy behind the conservation of energy. I have given some examples of conversion of energy, transformation of energy from one type to another. But all these examples we can easily observe in our day-to-day lives. But energy conservation is equally important so that it is used optimally by the present generation, and that there are still sufficient energy resources left for future generations as well. And that is what sustainable development is all about. I would now like to request Dr. Santosh Kumari ji, Senior Regional Director, IGNOU Regional Center Khanna, to give her opening remarks about this webinar, what National Energy Conservation Day is all about,
and formally introduce and invite the keynote speaker of today's webinar to address the participants. Thank you. थैंक यू डॉक्टर परमेश चंद्र जी। सबसे पहले स्वागत करती हूँ इस नेशनल वेबिनार में, और आज के इस वेबिनार में जो प्रेजेंट हमारे कोऑर्डिनेटर्स ऑफ ऑल द स्टडी सेंटर्स और जो नेशनल लेवल पे कुछ हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ में ही मेरे कलीग्स फ्रॉम दिस रीजनल सेंटर, all in this national webinar on energy conservation in day-to-day life. जैसे कि आज का दिन नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी डे जो पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी पे है, लाइक एनर्जी कंजर्वेशन इन डे-टू-डे लाइफ। As this Energy Conservation Day is celebrated on 14th of December every year to celebrate the country's strides in energy efficiency and conservation. First of all, we know about its history, means from which time it is being celebrated. Like the Ministry of initiated the National Energy Conservation 1991 to recognize industries for efforts in reducing energy consumption while sustaining production. The Bureau of Energy Efficiency organizes the event annually with the inauguration awards ceremony held on December 14, 1991. Miss, what is the objectives of celebration of this day? It's the National Energy Conservation Day aims to raise awareness about the global warming, climate change, etc., and encourage initiatives to conserve energy resources. It serves as a platform to celebrate India's achievement in energy efficiency and conservation. Means, what is the significance of this event? In today's world facing challenges of climate change and energy security, National Energy Conservation Day holds greater significance. Promoting energy conservation helps reduce reliance on fossil fuels, mitigate climate change, and create a sustainable future for all. It underscores the collective responsibility to address environmental concerns through mindful energy consumption. It's an opportunity for individuals, communities, businesses, institutions, and governments to reflect on their roles in contributing to energy conservation through embracing various energy efficient practices. This is about initial remarks about this day of conservation of energy. Now I invite our keynote speaker of today's webinar is Dr. Amit Kansalji. First of all, I would introduce you all. Though you all know, Dr. Kansali is working as Director Independent, National Hydroelectric Power Corporation, NHPC, Ministry of Power, Government of India. He is also a member of Academic Council of IGNOU, New Delhi. He has outstanding academic credentials throughout his education. He obtained his doctorate in political science from Punjabi University, Patiala. He has completed 3 master's degree in political science, journalism and mass communication, distance education, and also obtained the degree in law, that is LLB. He is associated with the IGNOU Regional Center Khanna since 2013, as he worked as coordinator, academic counselor at IGNOU Study Center, Nehru Memorial Government College, Mansa. One of our study center at Nirman campus, Sunam, is functioning very successfully under his able guidance, and he is Chief Executive Officer
and founder of Nirman, a social organization, and Consult Foundation for Education, Skill Development, and Employment. So he is contributing a lot about uplifting the poor and needy persons. जैसे कि हमारा जो सेंटर है ये एक रूरल बैकग्राउंड में है, and we acknowledge his contribution in the field of education as well as other ways. As a politicians also in we can say that he is also contributing the people of his area. So I welcome Dr. Kansal sir to present his keynote address in today's national webinar on energy conservation in our day-to-day life. Thank you. थैंक यू मैम, बहुत बहुत आभार। परम आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमारी जी, जिनका मार्गदर्शन मुझे पिछले 10 साल से मिल रहा है इग्नो परिवार में, डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी, श्रीमान पप्पू सिंह जी, प्रगट सिंह जी, और विभिन्न केंद्रों से जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर और अलग अलग जगह से जुड़े हुए शिक्षाविद साथी दोस्तों, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इग्नो द्वारा आयोजित नेशनल कंजर्वेशन डे पर, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे पर कीनोट स्पीकर के रूप में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखो, पिछले 2 साल से मैं एजुकेशन के साथ तो जुड़ा हुई हूँ, लेकिन देश की नहीं पूरे वर्ल्ड की जो एक बड़ी कंपनी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन, उसके निदेशक के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। और मैंने ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, या कोई भी डैम बनाने में, या ऊर्जा का प्लांट लगाने में कितनी मेहनत होती है, उसको मैंने बारीकी से समझा है। अभी मैं ऑन द वे हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, और कल सुबह मैंने अरुणाचल जाना है। देश का सबसे बड़ा स्वांसरी डैम जो है वो हम तैयार कर रहे हैं, और इसी साल हमें जनवरी फरवरी में है देश को समर्पित करना है। मेरे पास मैम का कल परसों फ़ोन आया इस संबंध में। शायद मैं बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकता था, लेकिन मेरे पास प्रेजेंटेशन बनाने का टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ। जैसे कि डॉक्टर प्रमेश चंद्रा जी और मैम ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है इसका अनावश्यक उपयोग ना करना, और कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करते हुए किसी भी कार्य को करना। कहने का अर्थ है कि माइंडफुल वे से हमें ऊर्जा का प्रयोग करना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे ऑफिस में, क्योंकि हम हाइड्रो एनर्जी से जुड़े हुए हैं, हमने एक नियम बनाया हुआ है। तकरीबन 19,000 एम्प्लॉयज़ हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन में। तो जो हमारा फरीदाबाद में हेडक्वार्टर है, हमने वहाँ एक नियम बनाया है कि हम उतना ही पानी ग्लास में लेते हैं जितना हमने पीना है। तो पानी को हम वेस्ट नहीं करते। मतलब इतनी गंभीरता से हमने पानी के बारे में सोचा है कि पानी को हमें वेस्ट नहीं करना। जब हम बात करते हैं ऊर्जा की, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक सपना लिया है कि आने वाले जो 25 वर्ष हैं उसमें देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, और 2070 तक हम 0 कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य लेकर चले हैं उसे प्राप्त कर सकें। यह तभी संभव है अगर हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लेकर आएंगे। देखिए, ऊर्जा का उत्पादन बहुत हो रहा है। हम 75 सालों में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस करे थे, वो तकरीबन 8,000 मेगावाट हम प्रोड्यूस करे थे एनएचपीसी के माध्यम से। लेकिन अभी 75 महीनों में यह कैपेसिटी 16,000 मेगावाट डबल होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी देश में ऊर्जा का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वह रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बढ़ रहा है, कोई कमी नहीं है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ लोगों में उसकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। पहले किसी समय हम गांव में रहते थे, शहरों में देखते थे कि बल्ब चलता है, एक ट्यूब चलती है, धीरे धीरे हीटर, एसी वगैरह आने लगे। लेकिन आने वाला समय तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बात की जा रही है कि जितने भी वाहन है वो बिजली से चलेंगे। और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आना
स्वाभाविक है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। इसके लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा कि हम अक्सर छोटे होते एक कहावत सुना करते थे कि एक पैसे को बचा लिया हमने तो एक पैसा कमा लिया। तो जो ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य क्या है? हम सब लोग बड़े हैं, आज में बड़े हैं और अच्छे मुकाम पर हैं, बहुत अच्छी शिक्षा हमने हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी आदतें कुछ ऐसी हैं कि अगर हम एक बल्ब को चलते हुए देखते हैं, हम सबकी बात नहीं करूंगा लेकिन अक्सर रूटीन में ऐसा होता है, जितना मैंने देखा है कि चलो कोई बात नहीं, चलता रहने दीजिए, एसी चल रहा है फालतू चलता रहने दीजिए, टीवी चल रहा है चलता रहने दीजिए। तो जी जो चलता रहने वाली जो आदत है, इस आदत को छोड़कर जब हम ऊर्जा को बचाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप में हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में कुछ ना कुछ भागीदारी देते हैं। देखिए, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था सबको पता था कि हम गुलाम हैं, लेकिन आज़ादी हमें एकदम से नहीं मिली। उसमें कितने लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी। महात्मा गांधी जैसे लोग आए जिन्होंने पब्लिक मूवमेंट बनाया, आज़ादी की लहर को, लोगों को घर से बाहर निकाला और बैठे हुए सब लोग, और लोगों को पता चला कि यार हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, और हम सब लोग एक आंदोलन के रूप में खड़े हुए और आखिर में हमने आज़ादी प्राप्त की। इसी प्रकार से जब भी कोई कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या किसी संस्था द्वारा करवाया जाता है, उस कार्यक्रम का मकसद मात्र उस कार्यक्रम को संपूर्ण करना नहीं है, बल्कि उसका मकसद होता है कि उस कार्यक्रम से हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ धारण करें और कुछ ना कुछ सीखें और उसको आगे भी बताएं। देखिए, जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, मैंने लगभग 20 साल टीचिंग में हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, तो अक्सर जब मेरा लेक्चर खत्म होता था तो लेक्चर स्टैंड के पास जो स्विचेस लगे होते हैं मैं उनको अक्सर बंद करता था, लाइट्स और फैंस वगैरह को। ये आदत मुझे एक लंबे समय से लगी हुई थी। लोगों में क्या धारणा रहती है कि घर में हैं हम तो जो बिजली मेरी है और इसको मुझे बचाना है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर है कोई दिक्कत नहीं, ये तो सरकार की है। लोगों में यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की धारणा है कि यह घर मेरा है, यह देश मेरा है, यह संस्थान मेरा है, इस तरह की धारणा हमें लेकर आनी पड़ेगी, तभी जाकर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि बात तो बहुत छोटी है कि हम कम दूरी में जहाँ जाना है वहाँ हम पैदल चलें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ऊर्जा बचेगी। बल्ब ट्यूब को फालतू अगर जरूरत नहीं है तो उसे बंद कर दें। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, हम इनको बहुत छोटा मानते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ठोकर जो है हमें एक छोटे पत्थर से लगती है, पहाड़ से नहीं लगती। छोटी छोटी बातों को जब जीवन में व्यवहार में लेकर आएंगे तो वो निश्चित रूप से हमारे देश के कल्याण के में और राष्ट्र के निर्माण में हमारी भूमिका होगी। तो 14 दिसंबर को पूरे देश में जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उसके लिए यह सरकार के एक सराहनीय कदम है। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ जगहों पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा जब कुछ अपने मंतव्य के लिए मुफ्त की बिजली की व्यवस्था की जा रही है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, और जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसका कोई मूल्य नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जहाँ ये बिजली का उत्पादन होता है, हम 3 तरह की बिजली का रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। अगर आप देखेंगे तो लगभग 24 हाइड्रो मेगा प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं और 20 के लगभग अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, अगर हम उनको देखें कि वो प्रोजेक्ट बनता कैसे है तो हमारे रेंगटे खड़े हो जाते हैं। अक्सर मेरा वीडियो डालने का मकसद यही रहता है कि देशवासियों को पता चले, क्योंकि उन जगहों पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है हम पब्लिक के लिए, लेकिन मेरा मकसद रहता है कि लोगों को पता चले कि बिजली बनती कैसे है, जिसको हम बड़ा आसानी से यूज करने की एक कमोडिटी मानते हैं और अपना हक मानते हैं, उसको बर्बाद करते हैं।
जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट हाइड्रो का बनता है तो उसको बनाने में 15-20 साल लगते हैं। देश का टॉप मोस्ट टैलेंट जो IIT से पढ़ता है वो जाकर वहाँ काम करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सिविल हैं, मैकेनिकल हैं, सब लोग मिलकर वहाँ काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। एक डैम को बनाने के लिए जो रिवर बेड है उसके 200 फीट तक नीचे जाकर उसका काम शुरू होता है। इसी प्रकार से टनल बनती है पहाड़ों को खोदकर, और कितने इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें कितने लोगों की जान चली जाती हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है, शहीद हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब पावर हाउस बनता है उसके 4-5 फ्लोर बनते हैं, टर्बाइन्स काम करती हैं। तो कहने का मतलब है कि जब बिजली का जो उत्पादन होता है, जब हम उसको समझेंगे कि बिजली का उत्पादन कैसे होता है, उसको डैम को कैसे बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे रेंगटे खड़े होते हैं कि यार इतनी दुर्गम परिस्थितियों में काम कर कर पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फिर बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन बिजली हमारे घरों में बड़ी आसानी से पहुंचती है और आजकल तो फ्री में पहुंचती है, जिसके कारण हमारी आदत बिगड़ चुकी है और हम बिजली की वैल्यू नहीं कर रहे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर, कल जब मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो मुझे किचन में किस प्रकार से हम ईंधन की बचत कर सकते हैं, तो मुझे, क्योंकि किचन में मैंने काम तो किया नहीं है, लेकिन मैंने देखा, उसको पढ़ा कि जो छोटा बर्नर है उस पर छोटा बर्तन रखकर हम ईंधन बचा सकते हैं, बड़े बर्नर पर बड़ा बर्तन रखकर हम काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे घर हैं, बड़े बड़े सुंदर हमने बड़े घर बना लिए महलों जैसे, लेकिन मैं हंसता हूँ अक्सर, मैं खुद भी इसका हिस्सा हूँ। मैंने देखा है कि हम पहले तो घर में बड़ी बड़ी विंडोज लगाते हैं, फिर उन विंडोज के ऊपर कर्टन्स लगाते हैं कि रोशनी अंदर ना आए। तो कुदरत की जो रोशनी है घर में, हम अगर उन कर्टन्स को हटाकर रखते हैं तो जो नेचुरल लाइट है दिन के समय, अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उससे भी बिजली बचती है। इसी प्रकार से हमारे पास वॉशिंग मशीन्स आ चुकी हैं बहुत सारी, उसमें हम 2 कपड़े 3 कपड़े डालकर जब दिल चाहता है हम कपड़े धो लेते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक वॉशिंग मशीन को पूरा लोड कर कर वॉश नहीं करते तो बिजली उत्पादन उस पर ज़्यादा लगता है, इसलिए उसे पूरा लोड कर कर ही हमें ये करना चाहिए। उसी प्रकार से घरों में हम किसी टाइम जो बल्ब आम होता था उसे यूज़ करते थे, आज अच्छी टेक्नोलॉजी के जो बल्ब्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हम LED बल्ब यूज़ कर सकते हैं, CFL बल्ब यूज़ कर सकते हैं, इनकी लाइफ भी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा बिजली की कंजम्पशन को ये कम करते हैं। उसी प्रकार जो एनर्जी सेविंग अप्लाइंसेस हैं, जिनको भारत सरकार की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। एक बार जरूर हमें लगता है कि उनकी कंजम्पशन, उनका चार्जेस ज़्यादा है, लेकिन 2-3-4 साल में वो जितना चार्जेस हमने लगाया होता है वो उतनी बिजली को बचाकर हमारी जो है कंजम्पशन उसको कम करते हैं। इसी प्रकार से अक्सर हम देखते हैं कि घरों में पानी को भी मैं एक एनर्जी का ही रूप मानता हूँ। पानी का बहाव हम अननेसेसरी रूप से गाड़ियों को धोने में, फर्श को धोने में करते हैं, लेकिन हमें उसको भी बचाना चाहिए बिजली के साथ साथ, क्योंकि हम तो पानी से ही बिजली बनाते हैं। इसके अलावा घरों में मेरा मानना है कि जितने भी हम लोग समर्थ लोग हैं, सोलर एनर्जी को हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग तकरीबन 10,000 मेगावाट जो सोलर एनर्जी है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, उसके उत्पादन में हम लोग लगे हुए हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि जो सोलर ऊर्जा है वो पूरी तरह से मुफ्त में है और हमारा जाता कुछ नहीं है, लेकिन एनर्जी हम काफ़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा ऐसी बहुत सारी योजनाएं सब्सिडी के अधीन शुरू की गई हैं। अगर किसी ने उस योजना के बारे में जानकारी लेना भी होगा तो मैं उस संबंधी पूरी जानकारी दे सकता हूं। फिर बात उठती है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। हम लोगों को लगता है कि यार मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो उससे होगा क्या। देखो,
मैं भागवत गीता अक्सर बांटता हूँ और उसकी कुछ पंक्तियों के मैंने अपने जीवन में भी रखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार का श्रेष्ठ पुरुष आचरण करेगा उसी प्रकार का अन्य पुरुष आचरण करते हैं। तो हम सब लोग जो बड़े लोग हैं, किसी भी उत्तरदायी पद पर बैठे हैं, शिक्षित हैं, तो हमारा आचरण दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा। जैसे हम एनर्जी को बचाएंगे तो बच्चे भी हमसे प्रेरणा लेकर वैसा काम करेंगे। लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन छोटी नहीं है, वह भी बहुत बड़ी है। मैं अक्सर रामायण की एक कहानी को पढ़ता हूँ खुद को प्रेरणा देने के लिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे काम का क्या रोल है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम सेतु का जो लंका और भारत के मध्य बना हुआ है उसका निर्माण कर रहे थे, तो बड़े बड़े भालू, रीछ, बड़े बड़े पत्थर उठाकर वहां उस सेतु को बनाने के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन तभी हनुमान जी की दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ती है। वो क्या करती है कि अपने शरीर को गीला करती है पानी में, उस पर मिट्टी को लपेटती है, फिर आकर राम सेतु पर अपने शरीर के माध्यम से छिड़क देती है। तो सब बानर यह देखते हैं कि ये गिलहरी क्या कर रही है। तो गिलहरी ने बोला कि मैं अपना कार्य कर रही हूँ, जो मुझे काम करना है वो मैं कर रही हूँ अपनी समर्था के अनुसार। तो किसी भी व्यक्ति का कार्य छोटा नहीं होता। तो आज हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो क्योंकि इसमें कोई बड़े फंडास तो है नहीं है कि कोई मुझे कुछ चीज़ों को समझाना है। इसका सिंपल सा अर्थ है कि हमें बिजली को बचाना है और पूरी बुद्धिमत्ता से उसको बचाना है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अपने आप को एक उदाहरण के रूप में पेश करना है। समाज के सामने हमारा यह रहे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उचित साधन बने। देखिए, मैं अक्सर बात करता हूं कि इग्नू में भी जब मैंने 2013 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए कोऑर्डिनेटर, तो उस समय क्या था कि बहुत सारे चिट्ठी पत्र हम लोग भेजते थे और पेपर पर वर्क करते थे, पेपर पर ही फॉर्म भरे जाते थे। और पेपर बनाने के लिए कितने ही वृक्षों को काटा जाता है, और वृक्षों को काटने से पर्यावरण पर उसका अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमारे आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमारी जी ने बताया कि इसका जो आज का हमारा दिवस है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे का, तो उसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से भी है, क्लाइमेट चेंज से भी है, क्योंकि ये मल्टी डिमेंशनल है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो ऊर्जा को हम बचाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और क्लाइमेट चेंज में भी जो हम सकारात्मक काम कर सकते हैं वो करेंगे। तो पेपर आज लगभग इग्नू में भी पेपरलेस वर्क हो रहा है। बहुत कम मुझे लगता है कि कभी चिट्ठी पत्र वहाँ से आता है या कागज पर काम होता है, तो ईमेल के माध्यम से काम होता है। तो मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में इग्नू के माध्यम से ही हजारों पेड़ों को हमने बचा लिया होगा। तो इसके लिए इग्नू बधाई की पात्र है कि पूरी तरह से हमने ऑनलाइन माध्यम से काम करना शुरू किया है। तो जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड काम हैं वो सारे जो हैं वो एनर्जी को बचाने में सहायक होते हैं। तो मेरा आज आप सबसे इतना ही अनुरोध है कि हम सब लोग एक संकल्प लेकर इस कार्यक्रम में से उठें कि यहाँ कहीं भी ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करें। जागरूकता में ही इस अभियान की सार्थकता है। हम ऊर्जा के सैनिक बने, क्योंकि अक्सर व्यक्ति को क्या लगता है कि जैसे मैं ना सड़क पर देखा करता था छोटे होते, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो कोई स्टूडेंट स्मोकिंग कर रहा होता था, हम सोचा करते थे कि शायद इसको पता नहीं है। उसको भी पता है कि जो स्मोकिंग है वो सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन मेरा प्रयास रहता था कि मैं उस लड़के को बोलता यार क्यों स्मोकिंग कर रहा है, छोड़ दे, है ना। तो उसको एक कोशिश होती थी कि उसको प्रेरणा दें। उसी प्रकार से जहाँ कहीं भी हमें हमारे ऑफिस में, हमारे घर में या किसी और संस्थान पर हमें लगता है कि ऊर्जा का अनावश्यक रूप से उपयोग हो रहा है, तो हम खुद उसे बंद कर दें। पानी का नल चल रहा है, हम उसे बंद कर दें, या
लोगों को प्रेरित कर सकते हैं अपने उदाहरण के माध्यम से। तो इतना कहते हुए आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी जो इग्नू के अधिकारी हैं, मेरे साथी दोस्त हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उन्होंने अवसर दिया। और विशेषकर से जो हमारे माननीय क्षेत्रीय निर्देशक हैं मैडम डॉक्टर संतोष कुमारी जी, जिनका हमेशा से मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा, बड़ा स्नेह मिलता रहा है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे अवसर दिया आज इस विषय पर बात करने के लिए। और मेरी तरफ से जो सरकार की तरफ से मुझे एक दायित्व दिया गया है एनर्जी के लिए काम करने का, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में काम करने का, तो ऊर्जा उत्पादन में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन समूह देशवासियों से मेरा इतना निवेदन है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री का एक संकल्प है कि आने वाले 25 साल जो अमृत काल के हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी समर्था के अनुसार देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करे। अगर हम छोटी छोटी बातों को ही अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यह देश आने वाले 25 सालों में विकसित राष्ट्र बनेगा और परम वैभव पर पहुंचकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर अमित कंसल जी, आपने बहुत अच्छा बताया। क्योंकि आजकल जो भी हम अवेयरनेस ये करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, मेन मकसद तो यही होता है कि लोगों को अवेयर करना। चीजें तो सब कुछ पता है, लेकिन है कि हमें अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि प्लेज लेंगे कि आगे से हम सभी को अवेयर करें और खुद भी इसको अपनाएं। और हमारे ऑफिसेज में जैसे है कि सभी को, जैसे हमारे ऑफिस में भी आज प्रेजेंट है सभी लोग, तो मैं आप सभी को कहूंगी कि जब भी देखें कि कोई फैन चल रहा है या कोई लाइट एक्स्ट्रा जल रही है तो उसको बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे, ताकि एनर्जी को हम सेव करें। तो तभी हम आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ बचा कर रख सकते हैं। तो इसलिए आज के दिन हमें ये प्रण करना है। तो अभी मैं डॉक्टर परमेश चंद्र जी को कहूँगी कि वो आगे सभी का धन्यवाद करें। और आपने डॉक्टर कंसल जी, मैं कहूँगी कि इतने मीन्स आप रास्ते में हो फिर भी आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। डॉक्टर परमेश चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर सकूं। इस पूरे प्रोग्राम के आयोजन में हमने जो की नोट स्पीकर आज इनवाइट किए थे डॉक्टर अमित कंसल जी, मैं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना के तरफ से आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में आकर के अपने विचार हमारे साथ साझा किए ऊर्जा संरक्षण के ऊपर, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत हैं। तो आपके माध्यम से हमें जो भी सरकार की नीतियां हैं और इस समय क्या वर्तमान में चल रहा है उसके विषय में जानने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। तो आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रोग्राम में अपने विचार व्यक्त करने के लिए। साथ ही मैं अपने सीनियर रीजनल डायरेक्टर मैडम इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना को भी धन्यवाद देना चाहूँगा उनके गाइडेंस के लिए और उनके लीडरशिप के लिए। इस पर्टिकुलर वेबिनार को आयोजित करने के दौरान उन्होंने हमें जिस तरह से मार्गदर्शन दिया और इस प्रोग्राम को हम लोग और अच्छे तरीके से आयोजित कर पाए तो सब। और हमारे साथ में इस समय मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कई स्टडी सेंटर्स हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे पास इस समय भोपाल से एवेल्यूशन सेंटर से भी इग्नू के ऑफिशियल्स जुड़े हुए हैं। हरीश कुमार केवट जी हमारे साथ हैं जो इग्नू के ऑफिशियल हैं। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल होकर के अपना समय निकाल करके इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और जितने भी हमारे स्टडी सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स और जो भी स्टाफ हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज शामिल हैं, ऑल्दो पूरे रीजन में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया इग्नू के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और ज़्यादातर कोऑर्डिनेटर्स ही हमारे एग्जामिनेशन सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं। तो उन्होंने भी इस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए समय निकाला। मैं
क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की तरफ से उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारी जो टेक्निकल हैंड रीजनल सेंटर की टीम रही है, जिसने इस प्रोग्राम को टेक्निकली आप तक पहुंचाने में पूरा योगदान दिया है। मैं ऑल्दो दे आर ऑन द बैक हैंड, बट दे आर इक्वली part of this entire successful culmination of this program. So I extend my thankfulness to all of them, and if anybody has been left, I am really apologetic for it, but hopefully I have conveyed my thankfulness and gratitude to everybody. I hope we can now officially put the curtains down on this program, if you kindly permit, madam. Thanks to one and all. ठीक है। थैंक यू जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत डॉक्टर आभार। मोहन नमस्कार जी। मोनिका दुआ जी, आपने भी टाइम निकाला, तो इसीलिए मैं Thank you, आपका ma'am. बहुत-बहुत Thank you. It's a great opportunity for the centers. Thank you, ma'am. Thank you, Council sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. It's really very valuable topic. थैंक यू जी। Lots of thanks for arranging such types of seminars.